थिन सिलेंडर, वेरी नाइस टॉपिक। सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। बेसिकली थिन सिलेंडर में क्या होता है, हम सबसे पहले सिलेंडर की बात करते हैं। सपोज कर लो एक सिलेंडर है और इसके अंदर गैस भरी हुई है। बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण ये बस्ट हो गया। दो तरीके से बेसिकली ये भस्ट होगा। कैसे कैसे? पहला तरीका, या तो ये भस्ट हो इस तरीके से कि ऐसा टाइप का भस्ट हो, पहला हिस्सा उड़ गया, नीचे वाला हिस्सा ऐसा उड़ गया। ओके। सेकंड तरीका ऐसा टाइप, ये तो फर्स्ट है। सेकंड कुछ इस तरीके से दो हिस्से में हो गया। बराबर भी हो सकता है, लेंथ आधी आधी भी हो सकती है, कुछ भी तरीका हो सकता है। ये सेकंड। ओके। अगर सेक्शन ऐसा भ्रष्ट हुआ है तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू सरकमफेरेंशियल या पूप स्ट्रेस के कारण हुआ। ओके, बताता हूँ क्यों, रुको। और अगर इस तरीके से हुआ, दो हिस्से में ब्रेक, देन इट इज ड्यू टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, यू मस्ट बी ओके। नाउ एक सर्कल है, अगर मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ in every direction, the force is been applied, then it is been break into two sections. The circumference of the circle is been break, hence it is called the circumferential stress is the reason for the breaking, hence it is circumferential. That's why this case is known as circumferential, because in cylinder there are large number of circles and they are being break due to circumferential stress. And in this case longitudinal, what happens is that when pressure is applied, this section, the section of the cylinder which is being break, having a longitudinal effect of pressure, the pressure is applied in both the direction, and this longitudinal, why longitudinal, that's why this is the reason for this breakage, that's why it is longitudinal. Now we derive quickly an expression for both these rubbish terms. One is circumferential or hoops and another is L. Okay, longitudinal stress. First of all, we deal with the circumferential. What happened in the circumferential is, we know everybody that this kind of happening. Okay, go got a wonder on my diagrams, but it happens like that. Here what happened is that when we consider a cylinder, a laminar pressure is being formed. How it is formed? This is a cylinder wall. Okay, you must be, yeah. We know that P is the intensity of internal pressure. Okay, D is the diameter. Yeah, internal diameter, most confusing. T is the thickness, and last but not the least, L is the length of this rubbish cylinder. Okay, now what happened is that when the cylinder burst,
then this section makes an another sense and that section makes an another sense. What happens is to calculate the stress which is happening in due to this reason. First of all, let us draw a cross section of this. See, what happened here is this section is basically, when I saw it from the top view, when I see, जब मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा कुछ इस तरह नजर आएगा. Okay, it is the T thickness and this is the D and this is length L. Okay, see, these circles are been break. Here was circle, here was circle, here was circle, here was circle. These circles are been break. There is a laminar, it's a lamina here which is causing this all circles to break. यहाँ पे एक लैमिना है जिसके कारण ये सारे सर्कल टूट रहे हैं. इस लैमिना का ये है वे. यहाँ पे ढेर सारे फोर्स लग रहे हैं. ओके, इसके कारण ये जो लैमिना है ये ब्रेक हो गया. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द P, कैपिटल P. We know that small p is the intensity और एरिया कि कितने में लग रहा है. जैसे बोलते हैं ना, इतना 1.2 एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया था, उसमें न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, फिर इससे मिलीमीटर स्क्वायर एरिया से मल्टीप्लाई किया तब इतना न्यूटन पता चला. वही है, ये इंटेंसिटी दिया हुआ है, हमको एरिया से मल्टीप्लाई करना है तब हमको नेट मिल जाएगा कि कितना उस पर प्रेशर लग रहा है. तो ये कितने जगह पे लग रहा है, ये D इंटू एल पे लग रहा है, इस सेक्शन पे लग रहा है. यहाँ तो नहीं लग रहा, नहीं तो यहाँ का बस्ट हो जाता. यहीं लग रहा है, यहीं का बस्ट हो रहा है. ओके, नाउ स्ट्रेस क्या होता है, P बाई ए. तो ये भी तो स्ट्रेस है, तो ये भी तो P बाई ए होगा, तो P की वैल्यू स्मॉल p D इंटू एल. अब ये A जो है ये वाइटल रोल प्ले करता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ये होता है रेजिस्टिंग एरिया, जो रेजिस्ट कर रहा है. बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है बॉडी पे, इन द बॉडी, तो बॉडी के अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं जो कि इस फोर्स को रेजिस्ट करते हैं. वो फोर्स जिस एरिया पे रेजिस्ट करते हैं उसको रेजिस्टिंग एरिया बोलते हैं. तो P फोर्स जहां लग रहा है अपॉन रेजिस्टिंग एरिया. रेजिस्टिंग एरिया यानी कि जो रेजिस्ट कर रहा है. कौन सा रेजिस्ट कर रहा है, यही तो रेजिस्ट कर रहा है, यही तो रेजिस्ट कर रहा है, यही सेक्शन रेजिस्ट कर रहा है. इस सेक्शन को तो कोई मतलब नहीं, इस सेक्शन को भी कोई मतलब नहीं, यहाँ तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है. देन दिस इज द रेजिस्टिंग एरिया. इसको कैसे निकालते हैं, ये है वो रेजिस्टिंग एरिया. ये सिलेंडर है, ये इसकी वॉल है, यहाँ तो खाली है. ये ही सबसे ज़्यादा जो टेंशन में टेंसाइल है. ये कितना है T, ये कितना है T प्लस T, 2T. यहाँ भी T, यहाँ भी T अप टू L लेंथ, यानी कि 2T की एक सीरीज L तक की गई है. ये पूरा सेक्शन एरिया ये फोर्स ले रहा है, यानी कि C इक्वल्स टू P D by 2T. Okay. This is the circumferential stress. Now we deal with the second blender thing, that is longitudinal. Okay, what happened in this, that the circle burst into two parts. दो पार्ट पे डिवाइड हो रहा है. सपोज करो यहाँ एक सर्कल था जो भस्ट हो गया, ठस गया. हम इस सर्कल को स्टडी करते हुए इस स्ट्रेस को निकालेंगे. हम जब इस स्ट्रेस को कभी भी स्टडी करते हैं तो ये कंसिडर करके करते हैं कि यहाँ पे दो लिड लगे हुए हैं जिसकी थिकनेस T है. ओके, क्यों, क्योंकि जब तक यहाँ पे दोनों में लिड नहीं लगी रहेगी प्रेशर बाहर निकल जाएगा. तो
इस सेक्शन पे कोई दबाव आएगा ही नहीं। सपोज ये पाइप है, यहाँ से हवा जा रही है, यहाँ से निकल जा रही है, कोई स्ट्रेस नहीं होगा जब तक इन दोनों सेक्शन को हम बंद नहीं कर देंगे और फिर इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा इस गैस के अंदर की इंक्रीज करेंगे, हीट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तभी तो ये दो सेक्शन में बस्ट हो जाएंगे। जहाँ से वीक होगा ये सेक्शन वीक है, ये बस्ट हो गया। इसकी स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे? सबसे पहले तो हमको पी निकालना पड़ता है। तो हमको पता है पी इंटेंसिटी होता है और ए एरिया होता है। अब जो एरिया है वो लैमिना नहीं है, वो एक सर्कल है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है। ये देखो यहाँ पे फोर्स पी लग रहा है ढेर सारा। अगर मैं इसका एक और क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं, सपोज ये सिलेंडर है और यहाँ से ये ब्रेक हुआ, ये पार्ट ब्रेक हुआ, मैं इसको ड्रॉ किया यहाँ पे लिड लगी हुई है, ऐसा करके ब्रेक हुआ है। ओके, इस सेक्शन पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पी दोनों डायरेक्शन पे लग रहा था और यहाँ पे ये एरिया लिड पैक है, यानी कि एरिया कितना है पाई d²/4। ये एरिया, ये प्रेशर, इंटेंसिटी और ये एरिया, तो इसने मिला के बना दिया टोटल प्रेशर। रेजिस्टिंग एरिया साफ पता चल रहा है, यही रेजिस्ट कर रहा है, इसको तो कोई मतलब नहीं है, इसको भी कोई मतलब नहीं है, यही बस रेजिस्ट कर रहा था। इतना ही सेक्शन ने तो कहा कि मैं रेजिस्ट करूँगा, इस सेक्शन को कोई मतलब नहीं है, इस सेक्शन को कोई मतलब नहीं है। यहाँ से थोड़ा ना ब्रेक हुआ है, ये पार्ट से थोड़ा ना ब्रेक हुआ, यहीं से ब्रेक हुआ, जहाँ से ब्रेक हुआ वही सेक्शन रेजिस्ट कर रहा है। इस पार्ट का एरिया निकालना, मैंने कहा ये एक सर्कल था जो ब्रेक हुआ, एक तरीके से एक सर्कल जिसका थोड़ा सा थिकनेस है, क्योंकि एक सेक्शन ब्रेक हो रहा है, ये ब्रेक हुआ है। ये मत समझ जाना है इसके 3 टुकड़े हुए, मैं तो बस बता रहा हूँ कि हम उसको एज्यूम कर रहे हैं। एरिया जो रेजिस्ट कर रहा है क्या है? ये सर्कल है, सर्कल का सारा हिस्सा रेजिस्ट कर रहा था इस फोर्स को। ओके, तो ये पूरा का पूरा सर्कल भस्ट हो गया ड्यू टू सर्कमफेरेंशियल फोर्स के कारण, यानी कि π/d। अब ऐसे ये एक सर्कल नहीं था, ये थिकनेस था इसका थोड़ा सा, यानी कि ये थोड़ा t थिकनेस तक था। ओके, ये तो p है, ये p/a, यानी कि ये स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, हो गया? रिलेशन निकाल लें, निकल गया रिलेशन, फॉर्मूले भी निकल गए दोनों के, डिराइव हो गया, समझ भी आ गया होगा। जाओ सो जाओ।